हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? यस एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर दैट माय ऑडियो वीडियो इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। यस, ऑलराइट, समवन कैन प्लीज कंफर्म? आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, sir, audible. All right, great, thank you very much. Okay, so fantastic, and welcome to our kind of first session for this particular season. And this particular session is about campus placement guidance, especially for MBA finance students. Right, you may be wondering that why we are starting so early. Right, आप लोग ये सोच रहे हो कि अभी तो हमने MBA स्टार्ट करा है और अभी हम लोग कैंपस प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं. So I need to tell you that this is a very, very high time. And one timeline that I would say is you should keep in mind is August, right? Sometimes it is July also, but it's August, right? August when generally campus start हो जाते हैं formally. So we are not too early. I would say that we are slightly late also if we are talking about specifically preparations. Okay, but anyways, there are a lot of things that we are going to discuss today. और आप लोग से एक एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि मेक इट वेरी इंटरैक्टिव, राइट? कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, सो डू नॉट हेजिटेट एट ऑल, राइट? जो भी क्वेश्चंस आए उनको अच्छे से डिस्कस करें, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, राइट? आई speak with a lot of students as mentioned here that every year like we place a lot of students and we do interact with lot of students, so बहुत सारे confusions होते हैं, and these confusions sometimes lead to delays, right? And that's not very good for you people, right? So कोशिश करें जितना ज्यादा आप interact कर सकें, जो भी questions हो उनको आराम से पूछें. If you can just keep one notepad in front of you, एक notepad रख लो, और या फिर आपके मोबाइल में एक important जो भी आप जहाँ पे भी नोटिंग्स कर सकते हो वहां पर नोटिंग्स करिए. बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हम लोग डिस्कस करेंगे. आई विल स्पेसिफिकली मेंशन दैट दिस यू शुड कीप इन माइंड, राइट? Okay, great. So let's start. The first thing is, of course, this is about the job placement. The entire discussion is going around that. Uh, as such, if I would say, I will come on to this slide later on. But first, I would introduce myself. Right, my name is Gunjan Shrimal. I have spoken with few of you earlier also. But those who are participating for the very first time, yes, yes, please mute कर लीजिए. Uh, जो लोग फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट? सो माय नेम इज गुंजन श्रीमाल. आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, एंड आई आल्सो डिड 1 year of executive program, that is with IIM Indore. I worked with some of the leading corporates, right? जो नाम आप देख रहे हो, right? I worked with these corporates: Idea Cellular, Bank of America, Apollo Group of Hospitals, Tikona Digital Network, Exiata. Right. So I had almost 10 years of corporate experience before we ventured into trainings. The trainings that we do is specifically targeted for campus preparations, right? So far, we have trained close to 3,000 plus students. Mostly they are chartered accountants and MBA finance students, right? So ये जितना experience I'm carrying, right? I would try आज के सेशन में कि आपके साथ जितना ज्यादा मैं शेयर कर पाऊँ, right? I will be very happy to share that particular experience. So what we do, you know that it's about camp prep is basically campus preparations, right? And all these companies which you are looking at the screen, right? A lot of students have been placed, right, in these companies. Some companies are regularly participating, like you can see Arcesium. You must have heard the name lot many times. आपने जब भी पूछा होगा अपने कॉलेज में कि सबसे ज्यादा पैकेज कौन सी कंपनी ऑफर करती है, तो सबसे पहले जो नाम आता है वो हमेशा आरसीएम का आता है, राइट? सो वी हैव स्टूडेंट्स वर्किंग फॉर आरसीएम, डेलॉइट, जो दूसरा नाम एक आता है दैट इज डेलॉइट, एसएनपी ग्लोबल, अलायंट ग्रुप, केपीएमजी, ऐसे ऐसे वो whichever company normally participate in the campus, right? That we have placed our students over there. So
but of course, like because you people have joined from different colleges, yes. So if you can write your which college you are basically from, right? So that would be great for me to understand. आप लोग कौन से कॉलेज से हैं अगर आप चैट बॉक्स में लिख पाए so that would be great. Okay, so I can make it more fruitful, right? आपको थोड़ा सा और कॉलेज स्पेसिफिक गाइडेंस देना में इजी रहेगा. ये जो आप देख रहे हैं यस फ्रॉम although we formally started from 2017, right? But yeah, that was our initial phase. So 22, 2020, 22 batch, 21, 23 batch, 22, 24 batch, right? These are full-fledged batches that we have seen very, very closely, right? And a lot of students have been placed in all these three batches. And last batch, right, which is still under process. But we are very happy that in that batch also कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आरसीसीएम को क्रैक कर लिया है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डेलोइट को क्रैक करा है, राइट? एंड सम ऑफ क्रैक ग्रैंड थॉर्टन आल्सो, राइट? सो आई थिंक 20 जो अभी बैच चल रही है 23 25 दैट वुड आल्सो बी वेरी वेरी सक्सेसफुल, राइट? So okay, great. I got good idea from all of you. Okay, so we have students from IMS, then Pune University. Okay, great, IMS. Then Pune University Prestige, IMS. Department of Management Science. Okay, Central University. Okay, of Jharkhand. All right. Okay, nice. Okay, great, great. Okay, fantastic. So we have a lot of people from different places. Now, uh, let's start with the basic first. Yeah, so the basic point that MBA finance students thinks is that can I get core finance job, right? ये जो सबसे बेसिक बात होती है वो ये होती है कि लाइक आप लोगों ने एमबीए फाइनेंस दो ही कारणों से करा है, राइट? एक तो अच्छा पैकेज, यस, हर एक का एक माइंड में ये होता है कि अच्छा पैकेज मिले, और पैकेज केवल पैकेज ही ना हो, यू शुड हैव अ गुड प्रोफाइल ऑल्सो, राइट? आप लोग नहीं चाहते हो कि आपकी शुरुआत सेल्स प्रोफाइल से हो. जैसे मैं जानता हूँ काफी सारे एमबीए के स्टूडेंट से बात हुई थी एंड दे से दैट वी नीड अ कोर फाइनेंस जॉब, राइट? सो कोर फाइनेंस जॉब आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट? ये आज का हमारा एजेंडा है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे. फिर आई एम फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, राइट? अगर आप में से कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर देम, राइट? Non-commerce matlab if you are from engineering, if you have done maybe Bachelor of Arts or something like that, other than BCom and BBA. Then you may be having question on some of the profiles, right? Some of you may be going looking for valuations, equity research, इस तरह के roles आप देख रहे होंगे. तो क्या आपको उसमें जॉब मिल सकता है क्या, राइट? हाउ मच इम्पोर्टेंस इंटर्नशिप हैज, राइट? इंटर्नशिप का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है, और इंटर्नशिप किस तरह की करनी चाहिए, राइट? दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन सर्टिफिकेशंस को लेकर है कि लाइक सर्टिफिकेशंस कौन से करें और कितने इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड वेदर सबसे इंपॉर्टेंट, क्या मेरा रेज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है? तो ये सब क्वेश्चंस आज हम लोग लेते हैं. इस सेशन को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला है बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री, राइट? अगर मैं आज आपसे पूछता हूँ कि आप लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन है, राइट? आप लोग क्या सोचते हो कितना एक एमबीए फ्रेशर को स्टार्टिंग सीटीसी मिलता है, राइट? व्हाट इज द स्टार्टिंग सीटीसी दैट अ एमबीए फ्रेशर गेट्स? सो आप में से कुछ लोग अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें. यस, एक सी एमबीए फ्रेशर को नॉर्मली कितना स्टार्टिंग पैकेज मिलता है? यस, एनीवन? 5 to 6 lakhs, sir. 5 to 6 lakhs, ठीक है. ओके, आप बाकी लोगों को डिसअपॉइंट तो नहीं कर दिया आपने? हम्म. ओके, और क्या क्या सोच के आप लोगों ने एमबीए स्टार्ट करा है कि क्या पैकेज होता होगा एक एमबीए फाइनेंस फ्रेशर का? 15 to 16, यस, ये इन्होंने एकदम बहुत ही हाई पैकेज बताया, राइट? 6 to 7, 8 to 10 lakhs. 8 to 10 lakhs, राइट? सो वेरिएशन बहुत है. सम ऑफ यू आर हैविंग द थॉट ऑफ 5 to 6, सम आर सेइंग
8 10, सम आर सेइंग 15 16, राइट? सो अगर आप देखते हो अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग तरह का पैकेज रहता है, बट हम लोग जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ये प्राइमरीली वी आर टॉकिंग फ्रॉम टीयर 2 पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? टीयर 2 मतलब अगर हम लोग इंडिया के टॉप जो कॉलेजेस हैं, लाइक टॉप 25 30 कॉलेजेस विच इंक्लूड्स आईएम्स, एफएमएस, एक्सएलआरआई, इस टाइप के जो कॉलेजेस हैं, उनको अगर हम लोग छोड़ते हैं, उसके अलावा जो कॉलेजेस हैं, राइट, जहाँ जिनको हम लोग प्राइमरीली अभी एड्रेस कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग ज्यादा करके बात करेंगे। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस करते हैं दैट व्हाट इज द पैकेज दैट इज बीइंग ऑफर्ड, और ये पूरा जो डिस्कशन है वो उसी एंगल से रहेगा, राइट? सो फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री एंड जॉब मार्केट। तो ये भी एक बात है कि पैकेज कितना मिलेगा, प्रोफाइल कौन सी मिलेगी, तो ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा है सेल्फ क्लैरिटी, इसके बारे में भी कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, बहुत जरूरी है। एंड थर्ड पार्ट इज कैंपस प्रिपरेशन, राइट? किस तरह की कंपनीज आती हैं, क्या पैकेज ऑफर करती हैं, क्या राउंड्स कंडक्ट करती हैं, ये सब डिस्कशन करेंगे, राइट? सो फर्स्ट इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री एंड जॉब मार्केट, राइट? सो द फर्स्ट पॉइंट इज अगेन पैकेजेस। अगर आप पैकेजेस देखते हो सो आई एम नॉट श्योर कि आपको, अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो तो कितना क्लियर दिख रहा है इसके ऊपर, बट फिर मैं थोड़ा रीड कर देता हूँ आपके लिए। जो सबसे ज्यादा पैकेज ऑफर करती है नॉर्मली कंपनीज जितने अभी हम लोगों ने देखे, उसमें एक आरसीएसएम करके कंपनी है, राइट? दैट इज समथिंग विच ऑफर्स मोर देन 15 lakhs, राइट? तो उसके सीटीसी में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, बट यस यू कैन ब्रॉडली से 15 17, समटाइम्स 15 to 17, और समटाइम्स 15 to 18 lakhs दैट इज ऑफर्ड, ओके? इसके अलावा जो कंपनीज है उसमें आप देख रहे हो एचडीएफसी, डेलॉइट, राइट? दे नॉर्मली ऑफर इन द रेंज ऑफ 8 lakhs, राइट? उसके अलावा जो कंपनीज जनरली हायरिंग करती है, एस एंड पी ग्लोबल, राइट, ई क्लर्क्स, डेसिमल पॉइंट, ओके, पूर्णार्थ, ओके, विप्रो लिमिटेड, ब्लैकस्टोन, ठीक है, 7 lakhs, अलायंट 7.2 lakhs, राइट? इस बार की बात करें, सम ऑफ द कंपनीज विच हैव पार्टिसिपेटेड दिस टाइम, दे हैव लाइक बीएनवाई मेलन, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क जो आई थी, राइट? दे ऑफर्ड 8.5 lakhs. Then Grant Thornton, they came for fund accounting. They offered around 5 lakhs. ओके, तो ये वेरी करता है अलग अलग, ठीक है? अगर बहुत ही लिमिटेड कंपनीज की हम बात करें, बट अगर इसको हम एक पिरामिड शेप की तरह सोचें, तो पिरामिड शेप में अगर आप सोचोगे तो इट इज मे बी आई थिंक अराउंड 1 or 2% ऑफ द एंटायर पीपल विल गेट मोर देन 15, राइट? 1 या 2% लोगों को ही जनरली मोर देन 15 मिलता है। उसके बाद अराउंड 10% 20% विल गेट मोर देन 8 lakhs, और फिर उसके बाद इट कम्स बिटवीन 4 to 6 lakhs, सॉरी 4 to 8 lakhs, राइट? और ये मैं बात कर रहा हूँ कोर फाइनेंस रूल्स की, ठीक है? तो दो बातें जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि अगर हमें कोर फाइनेंस में जाना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आपका जो थॉट प्रोसेस है कि वी हैव टू गेट वेरी वेरी हाई पैकेज, वेरी हाई पैकेज मीन्स मोर देन 15 lakhs, सो देर आर लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, सो यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर दैट। और उसमें जो कुछ कंपनीज हैं उनके मैं आपको एग्जांपल्स बता दूंगा कि ये कंपनीज नॉर्मली अच्छे पैकेजेस पर ऑफर करती है, ठीक है? तो यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड फॉर दैट। मुश्किल से 5 to 10% पीपल इन योर कॉलेज विल गेट दैट जॉब। अभी भी अगर आप अपने सीनियर से बात करेंगे तो वो आपको बता देंगे कि कितने लोग हुए हैं जिनका 8 lakhs के ऊपर पैकेज मिला है, विच आर इन टू कोर फाइनेंस, ठीक है? तो ये एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर प्रोफाइल्स की बात करें, तो प्रोफाइल्स के अंदर यू विल थिंक यू विल फाइंड दैट देयर आर 4 टाइप ऑफ रूल्स, ठीक है? आपको 4 तरह के रोल मिलेंगे। पहला रोल कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी। ये जनरली टीयर 1 कॉलेजेस में ज्यादा करके मिलता है, ठीक है? तो थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर मिलना। आप बोलोगे कि नहीं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में तो मिल जाते हैं जॉब, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मिल जाते हैं, लेकिन वो बैक ऑफिस मिलता है, ठीक है? फ्रंट ऑफिस मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है? दूसरा इक्विटी रिसर्च, जिसमें सबसे ज्यादा हायरिंग होती है, तो इसके लिए अच्छे से आपको तैयारी करनी है। थर्ड वन इज फाइनेंशियल सर्विसेज, उसमें भी बहुत सारे एमबीएस हायर होते हैं, ठीक है? इनके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो डेसिमल पॉइंट, एसएनपी ग्लोबल, एक्सेल डायनामिक्स, पूर्णार्थ, राइट, मॉर्निंग स्टार, ये वो कंपनीज हैं जो इक्विटी रिसर्च डोमेन में हायर करती है। बैंक्स की बात करें तो एचडीएफसी, बंधन, आईसीआईसीआई, टाटा, एआईजी, राइट, ये सभी बैंक्स हैं। बिग फोर की अगर बात करें तो डेलॉइट,
हर साल करीब करीब पार्टिसिपेट करती है, बहुत हायरिंग करते हैं। कुछ कॉलेजेस के अंदर पीडब्ल्यूसी भी हायरिंग करती है, ठीक है। बट वो किस रोल के लिए आती है वो अभी हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। अ, इसके अलावा फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए कंपनीज आती हैं, लेकिन कॉर्पोरेट फाइनेंस में आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपटीशन मिलती है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा मुश्किल रहता है। आईटी एंड टेक वर्क, इसके लिए भी कुछ कंपनीज आती है, फॉर एग्जांपल नोमुरा एंड ऑल। एंड सेल्स में तो ऑफ कोर्स आप लोग जाना ही नहीं चाहते हो, इसलिए आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो, ठीक है। तो सेल्स के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये कुछ एक कंपनीज और रूल्स हैं, अगर इसको शॉर्ट में समराइज करें। सो 8 lakhs के ऊपर डेफिनेटली देर आर पॉसिबिलिटीज, और आप लोग टारगेट कर सकते हो। से प्लेसमेंट सिनेरियो की अगर मैं बात करता हूँ तो लास्ट ईयर इतना अच्छा नहीं रहा था प्लेसमेंट सिनेरियो। नॉर्मली जो कंपनीज 30, 35, 40 स्टूडेंट्स को लेकर जाती थी, 5, 10 स्टूडेंट्स को ही लेकर गई, ठीक है। तो कंपटीशन थोड़ी सी हाई है इस बार। ओके। अच्छा, यहाँ तक आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताएं, ठीक है। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ, ठीक है। यस, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन, राइट, रिगार्डिंग पैकेज एंड प्रोफाइल, ठीक है। पैकेज और प्रोफाइल को लेके कोई भी क्वेश्चन हो तो बताएं, ठीक है। ऑल्दो ये तो एक जस्ट स्टार्ट करने के हिसाब से हमने रखा है। डिटेल में मैं आई विल ऑफ कोर्स टेल यू लॉट ऑफ थिंग्स। सर इक्विटी रिसर्च में स्टार्टिंग पैकेज क्या रहता है? इक्विटी रिसर्च में अगेन डिपेंड करता है कि फंड कौन सा है। फॉर एग्जांपल अगर इक्विटी रिसर्च की बात करें तो आनंद राठी एक इक्विटी रिसर्च कंपनी है, ठीक है। तो समटाइम्स दे ऑफर अराउंड 5 lakhs, समटाइम्स दे ऑफर अराउंड 6 lakhs, ठीक है। इसी के कंपैरिजन में अगर हम क्रिसिल की बात करें या और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या फिर कोई फॉरेन बैंक की बात करें, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की, तो वो ऑफ कोर्स डबल डिजिट में पैकेज ऑफर करते हैं, मोर देन 10 lakhs, ठीक है। लेकिन हमको सबसे पहली बात जो देखनी है वो देखनी है कि कॉलेज में कौन सी कंपनीज अभी तक पार्टिसिपेट कर रही हैं, और ऑफ कैंपस भी अगर हम जाते हैं तो किस तरह की कंपनीज हमको हायर करेंगी, ठीक है। तो दोनों ही सिनेरियो हमको देखना है। तो ये मैं उन्हीं कंपनीज के नाम बता रहा हूँ आपको जिसमें आप फिट होते हो। ये बात सबसे पहले आप लोग समझो कि हम लोगों को हमारा एक एरिया डिसाइड करना है। टीयर 1 कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, वो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इन सब एरियाज में सर्च करते हैं, उनके कॉलेज में कंपनीज भी वैसी आती है। हमारे कॉलेजेस में इसमें जैसी कंपनी आती है, हमको जैसा ऑफ कैंपस में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम उसके हिसाब से बात करें, ठीक है। तो ये एक बात है, ठीक है। सजेस्ट सम स्किल्स विच आई कैन एक्वायर टू हैव अ गुड स्टार्ट फॉर फाइनेंस, राइट। अब उसके ऊपर आ जाते हैं हम लोग। तो अब आप लोग थोड़ा प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं कि कुछ एक कंपनीज के मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, ओके। और ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत रेगुलर हायरिंग्स करी है, ठीक है। तो इनकी प्रोफाइल क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कि उन्होंने राउंड्स कौन से कंडक्ट करे थे। तो एक नाम आप लोग नोट कर लो, सभी लोग नोट कर लो, दैट इज डी शॉ, राइट। डी शॉ, और उसके आगे लिख लो आर्सेशियम, ठीक है। डी शॉ आर्सेशियम, इसके बारे में आप लोग अपने सीनियर से भी बात कर सकते हो, थोड़ा नेट पे भी सर्च कर सकते हो। दिस इज अ कंपनी विच ऑफर्स वेरी गुड पैकेज, वेरी गुड प्रोफाइल, ठीक है। ये नॉर्मली आते हैं हेज फंड अकाउंटिंग के लिए, ठीक है। हेज फंड, राइट। जैसा म्यूचुअल फंड होता है ना, ऐसे ही हेज फंड होता है। तो ये कंपनी है, सितंबर में नॉर्मली ये कंपनी आती है, तो इसके लिए आपको तैयारी अच्छे से रखनी है, ओके। सेकंड कंपनी जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं वो आती है डेलॉइट, ठीक है। डेलॉइट के भी प्रोसेस के ऊपर मैं आ जाऊंगा। दैट डेलॉइट आपको सबको पता है, बिग 4 है, बहुत अच्छा ब्रांड है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। थर्ड कंपनी S&P ग्लोबल, राइट। दे कम फॉर डेटा रिसर्चर, पैकेज इसका नॉर्मली कम होता है, समवेयर अराउंड 5, 5.5, लेकिन ये कोर फाइनेंस कंपनी में एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है आपको। फिर विप्रो ब्लैकस्टोन, ये भी बेसिकली एक तरह से फंड अकाउंटिंग के लिए है, बट इट्स वेरी गुड। ब्लैकस्टोन आपने सुना होगा, ब्लैकस्टोन दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट इक्विटी फंड हाउस है, राइट। तो ये काफी बड़ा प्रोफाइल और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। 3, 4 स्टूडेंट्स आर वर्किंग, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इसमें काम कर रहे हैं, वेरी हैप्पी विद द रोल। HDFC, यस, HDFC बैंक, बैंक में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट।
BNY, जैसा मैंने अभी बताया आपको, इस साल BNY ने भी पार्टिसिपेट करा था कैंपस में, राइट? सो दैट इज ऑल्सो देयर। दालूपा करके एक कंपनी है, राइट? ग्रैंड थॉर्टन, ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है आप लोगों के लिए, ठीक है? नेवर एवर फील कि हमारा प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। ये जो जितने स्टूडेंट्स हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ, उन्होंने कुछ ना कुछ गलतियां करी है, इसलिए वो अभी तक प्लेस नहीं हुए, ठीक है? या फिर आप, कई बार हार्ड लक भी होता है, ऐसा नहीं कि गलतियां ही करी है, लेकिन कहीं ना कहीं दे कैन, बाय दिस टाइम दे शुड गेट प्लेस्ड, ठीक है? सो कुछ बातें कर लेते हैं प्लेसमेंट से रिलेटेड। अब देखो, ये स्लाइड जो है ना, ये मेरे ख्याल से अभी तक की जितनी स्लाइड्स हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक पिक्चर ले लीजिए आप लोग, तो आपके 90% डाउट खत्म हो जाएंगे। राइट? दैट व्हाट इज द हायरिंग प्रोसेस? ओके, हायरिंग की जो प्रोसेस है वो क्या है एग्जैक्टली exactly? तो आप देखो कि जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट के सामने दो दो दरवाजे हैं, राइट? देयर आर टू डोर्स इन फ्रंट ऑफ द कैंडिडेट बिफोर ही गेट्स इनटू हिज ड्रीम जॉब। ड्रीम जॉब के पहले दो दरवाजे हैं, ठीक है? सो ये जो दोनों दरवाजे हैं, इन दोनों को आपको अच्छे से समझना है। तो फर्स्ट वन इज बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप एलिजिबल होगे तो ही आप इंटरव्यू में बैठ पाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कई लोग बोलते हैं कि नहीं सर, हम लोग बहुत अच्छी इंटर्नशिप कर लेंगे तो हमको इंटरव्यू में मौका मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, प्लीज अंडरस्टैंड। सर, हम लोग MBA में अपने बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, 80% स्कोर करेंगे, तो हमको प्लेसमेंट में मौका मिल जाएगा बैठने का? नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम हमारे प्लेसमेंट के जो हेड हैं, राइट, हम उनसे बहुत अच्छे से हम लोग रहते हैं। हम प्लेसमेंट कमिटी में हैं, हम खुद ही प्लेसमेंट कमिटी में हैं। तो क्या हमको मौका मिल जाएगा? सो जो बड़ी कंपनीज है उनमें नहीं मिलेगा आपको। यस, आपको तभी मौका मिलेगा जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करोगे, ठीक है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बेसिकली फर्स्ट इज मार्क्स, ठीक है? मार्क्स जनरली अगर आपके 60% के ऊपर है तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है? और सुपर सेफ जोन में तब हो जब आप 70% के ऊपर हो। और ये 70% कब है? 10th 12th और ग्रेजुएशन। अगर 10th 12th और ग्रेजुएशन में आपका 70% के ऊपर है स्कोर, ठीक है, तो आप सेफ, सुपर सेफ जोन में हो। क्योंकि कुछ कंपनीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, विप्रो जब आई थी तो उन्होंने 70% क्राइटेरिया रखा था थ्रू आउट, ठीक है? सो फर्स्ट इज मार्क्स। यस, तो जो लोग 60% के ऊपर हैं दे शुड फील हैप्पी। जो 60 के नीचे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू आ सकता है, ठीक है? दूसरा क्राइटेरिया क्या रहता है? ग्रेजुएशन स्ट्रीम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन जिन्होंने कॉमर्स में करा है, BCom, BBA, ठीक है, वो उनके जो शॉर्टलिस्टिंग उनकी शॉर्टलिस्टिंग होगी, डेफिनेटली उनको ज्यादा शॉर्टलिस्टिंग आएगी कंपेयर टू पीपल हु आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड। अभी से आप लोगों को मैं, जो लोग नॉन कॉमर्स हैं, एक आपके लिए दिस नॉट अ वेरी गुड न्यूज, ठीक है? लेकिन मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी खबरें देने के लिए नहीं हूं यहाँ पे, मैं आपको रियलिटी बताने के लिए आया हूँ, सो दैट आप अभी से उसकी तैयारी करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ग्रेजुएशन स्ट्रीम जो है वो बहुत मैटर करती है, ठीक है? सो आपकी ग्रेजुएशन स्ट्रीम कौन सी है, ये मैटर करेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ डेलोइट का ही। डेलोइट USI टैक्सेशन के लिए जो आती है, वो किस रोल के लिए आती है? वो टैक्स के लिए आती है, और वो ग्रेजुएशन स्ट्रीम में चाहती है कि पर्सन हैज टू हैव कॉमर्स बैकग्राउंड। तो जितने भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो उसमें शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते, ठीक है? तो बी वेरी क्लियर ऑन दैट, ठीक है? और ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसलिए किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थर्ड इज बैकलॉग्स। कोई भी बैकलॉग ना है आपका, ध्यान रखिए। थोड़ी कॉलेज की स्टडीज जो है वो स्टडीज अच्छे से करिए, राइट? कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए आपका। फिर गैप ईयर, ठीक है? अभी गैप ईयर को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। हर कंपनी का नहीं होता है क्राइटेरिया गैप ईयर का, लेकिन कुछ कंपनीज का होता है, लेकिन वो डिफाइन नहीं करते हैं कि गैप ईयर एक्चुअली है क्या, ठीक है? तो ये थोड़ा सा एक ग्रे एरिया है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। ये हम लोग जब जैसी कंपनी आएगी उस टाइम पे डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? सो ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? पहला दरवाजा आपका कब क्लियर होगा? इन पैरामीटर्स के बेसिस।
यहाँ कहीं भी लिखा हुआ है क्या कि आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए? यहाँ कहीं भी लिखा हुआ है कि आपकी इंटर्नशिप इस टाइप की कंपनी में ही होना चाहिए? तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग अपना टेंशन कम करो, राइट? ज्यादा टेंशन मत लो। एग्जाम का भी टेंशन ले रहे हो, पढ़ाई का भी टेंशन ले रहे हो, इंटर्नशिप का भी टेंशन ले रहे हो, सर्टिफिकेशंस का भी ले रहे हो कि लाइक हमारी क्लास में 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट ने बहुत सारे सर्टिफिकेशन कर लिए हैं, मैंने एक भी सर्टिफिकेशन नहीं करा, मैं क्या, मेरा क्या होगा? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक भी सर्टिफिकेशन नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर क्लियर रहो, राइट? बी वेरी वेरी क्लियर। मैं आपको ऐसे हजारों एग्जांपल दे दूंगा जिन्होंने कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं करा है, उसके बाद भी दे आर प्लेस इन अ वेरी गुड कंपनी। उसका रीजन क्या है? पहली चीज तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो उन्होंने मीट कर लिया है। क्लियर है आप लोगों को? सो ये जो फर्स्ट डोर है, ये सब लोगों को क्लियर हुआ क्या कि फर्स्ट डोर हम लोग कब क्रॉस कर लेंगे? इसमें किसी को भी क्वेश्चन हो तो प्लीज बताएं। आई हैव लिस्ट ऑफ कंपनीज जिनके जो जो क्राइटेरियाज हैं, वो मैं आगे, आज का सेशन थोड़ा शॉर्ट में रखेंगे, मतलब बहुत टाइम नहीं है, राइट? 1 आवर का ही सेशन है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बट आगे भी हम लोग सेशन करेंगे, उसमें कंपनी वाइज क्या क्राइटेरियाज है उसको डिस्कस करेंगे। बट यू गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट? किसी को क्वेश्चन हो तो प्लीज बताएं। ठीक है। सो लेकिन जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड्स हैं वो एकदम डिसअपॉइंट मत होइएगा। मैं आपको अगेन बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, दोज हु हैव गॉट वेरी गुड कंपनी। ठीक है, कम कंपनीज में शॉर्टलिस्ट होते हैं, लेकिन क्योंकि अब अपॉर्चुनिटीज कम है तो किसी ना किसी तरीके से उनको क्रैक करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो योर प्रिपरेशन हैज टू बी डेफिनेटली मच बेटर, मच हायर। एक तो आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने अकाउंट्स नहीं पढ़ा है 11th 12th में, और जिसने अकाउंट्स नहीं पढ़ा है थोड़ा उनको इशू आता है। ग्रेजुएशन में भी आपने अकाउंट्स नहीं पढ़ा है, तो अकाउंटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो एक तो आपको पढ़ाई भी ज्यादा करनी है, दूसरा कंपनीज भी थोड़ी सी कम आती है, शॉर्टलिस्ट कम करती है, तो दोनों ही केस में आप लोगों को थोड़ा एडिशनल एफर्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, सो सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं। सेकंड जो दूसरा दरवाजा है, दूसरा दरवाजा आता है सिलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो मैटर कर रहा है वो क्या मैटर कर रहा है? असेसमेंट टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यूज। ठीक है, असेसमेंट टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यूज, यहाँ पे ये चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, तो दोनों बातें आप बिल्कुल क्लियर रखो कि हम पहले दरवाजे से निकलेंगे तो ही हमारा इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू के लिए अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली, अच्छी बात है, बट अगर आप शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुए तो भी प्रॉब्लम है। तो हमको दोनों दरवाजे क्रॉस करने हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट दिस स्लाइड इज ऑल अबाउट। तो मैं पर्सनली ये बहुत सारे सवाल फेस करता हूँ सब स्टूडेंट्स से कि सर हम किस कंपनी में शॉर्टलिस्ट होंगे शॉर्टलिस्ट होंगे या नहीं होंगे, कौन सा सर्टिफिकेशन करें? तो व्हाट आई डिड इज आई मेड दिस स्लाइड वेरी वेरी क्लियर। आप लोग इसका एक डेफिनेटली स्नैपशॉट ले लीजिए। ओके, सो एक क्वेश्चन आया दैट one company has come for our college and their basic requirement is a financial modeling certificate or skill, right? देखो, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि you need to do a certification, right? They will definitely ask for your skills। ठीक है, कोई भी कंपनी ये नहीं बोलती है अगर आपने कोई स्किल्स ऐड करें, डेफिनेटली इट्स गुड, लेकिन ये नहीं कि लाइक इट इज अ बेयर मिनिमम क्राइटेरिया। ठीक है, कुछ कंपनीज एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। देखो, मैं नहीं बोलूंगा एक्सेप्शंस नहीं है, जैसे कि एक दो कंपनीज जिनका जो म्यूचुअल फंड्स में है, वो बोलते हैं कि ज्वाइनिंग के पहले आप एनआईएसएम के म्यूचुअल फंड के सर्टिफिकेशन करो। ठीक है, तो ज्वाइनिंग के पहले बोलते हैं कि वो आपको कंप्लीट करना है। तो ऐसी एक्सेप्शनल कंपनीज हैं जो कुछ कुछ चीजों के लिए बोलती हैं, लेकिन इसको एक रूल मत बनाइए। If someone has 69.6%, so will it be considered as 70%? नहीं नहीं नहीं, 70 नहीं होगा कंसिडर। यस, 69.6 would be 69.6। ठीक है, ओके ग्रेट। ठीक है, सो गुड, पूछते जाइए जो जो भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं, राइट? कोई भी क्वेश्चन इस सेशन के बाद अपने मन में मत रखिए। ठीक है, बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट वट एवर क्वेश्चन यू हैव। ओके, ऑल राइट, क्लैरिटी मिल रही है आप लोगों को? एक बार क्विक फीडबैक दे दो, ऐसा तो नहीं कि लाइक वी आर टॉकिंग समथिंग एल्स, यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स। यस, इज इट गोइंग फाइन? यस, उज्जवल, प्रथम।
ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, ऑल राइट, परफेक्ट, थैंक यू। अभी ये एक एग्जांपल है, राइट, ये वही स्टूडेंट है जिनका डेलॉइट में प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। अ, इन्होंने ये सारे सर्टिफिकेशन करे, ठीक है। क्या क्या सर्टिफिकेशन करे? एक्सेल का कोई क्रैश कोर्स करा है, स्टॉक मार्केट का कोई कोर्स किया है, गूगल डेटा स्टूडियो का कोर्स करा है, ठीक है। तो तीन चार सर्टिफिकेशंस करे इन्होंने, लेकिन इन्होंने टैक्सेशन का कोई सर्टिफिकेशन नहीं करा। डेलोइट किसके लिए आती है? टैक्सेशन के लिए आती है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ा इससे उनको, ठीक है। सो कई लोग बोलते हैं कि सर हमें डेलोइट में जाना है, वो टैक्स के लिए आती है, सीए फॉर्म में इंटर्नशिप कर लें क्या? कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो आप लोग? सो इसलिए कंपनी की रिक्वायरमेंट समझो आप लोग, रादर देन कि हम लोग अपने मन से कुछ सोच रहे हैं। आप ये अपने जो गैस वर्क होता है हमारा, कि ऐसा हो सकता है कि हम लोग ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये गैस वर्क करने की जरूरत नहीं है। डेटा है आपके पास लास्ट ईयर्स का, आरसीएम में आपको जाना है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है उसको पढ़ लो और उसके हिसाब से प्रिपेयर कर लो। गैस वर्क करोगे तो फिर फंस जाओगे, ठीक है। आईएसएनपी ग्लोबल में वन ऑफ आवर स्टूडेंट गॉट प्लेस, उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से सेल्स की इंटर्नशिप करी थी। ये मैंने इसलिए एग्जांपल लिखा था कि आप लोग बिल्कुल क्लियर रहो। आईसीआईसीआई बैंक से सेल्स की इंटर्नशिप करी थी और उनका प्लेसमेंट एसएनपी ग्लोबल में। इसलिए कोई कोरिलेशन नहीं है कौन सी इंटर्नशिप करी है आपने और प्लेसमेंट कौन सा हुआ है, ठीक है। वन ऑफ द स्टूडेंट, उन्होंने तो क्लियर ही नहीं थे वो कि हमको फाइनेंस लेना है या मार्केटिंग लेना है, ठीक है। तो उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का एक सर्टिफिकेशन कर लिया था और उसके बाद डेलोइट में प्लेस हो गए, ठीक है। तो ये बात आप लोग सब लोग अच्छे से क्लियर रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि सर्टिफिकेशन जरूरी नहीं है, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ। इस बात को थोड़ा सा आप लोग बैलेंस वे में समझो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपनी कॉलेज में कंपनीज के क्राइटेरिया को सामने रखो और उसके हिसाब से जो सर्टिफिकेशंस आपको अच्छे लग रहे हैं वो करो। लेकिन ये मत सोचो कि एक आपके लिए ये कंपटीशन है ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेशन पे। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ वो कंपटीशन करते हैं। अगर किसी ने इक्विटी मार्केट का करा है वो भी इक्विटी मार्केट का करते हैं, फिर फाइनेंशियल मॉडलिंग का करते हैं, फिर तरह तरह के सर्टिफिकेशन करते हैं। 10-15 सर्टिफिकेट करने के बाद वो ये करते हैं कि फिर बोलते हैं कि सर अब हमने इतने सर्टिफिकेशन तो कर लिए, लेकिन रेज्यूमे में कौन सा लिखे हैं? फिर मैं रेज्यूमे जब चेक करता हूँ मैं बोलता हूँ एक काम करो, आपने फाइनेंशियल मॉडलिंग का सर्टिफिकेट करा है, बताओ मेरे को वैल्यूएशन की कितनी मेथड्स होती है। बोले सर हमने वो तो ऑनलाइन सर्टिफिकेट करा था, कुछ भी याद नहीं है। फिर निकाल देते हैं उसको। तो मतलब ही नहीं है, अगर आप जब तक सर्टिफिकेशन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं। उल्टा उसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। आप जब रेज्यूमे में लिखोगे कि हमने एक्सेल का सर्टिफिकेट करा है, you will find a lot of questions on that. Today itself, I did a workshop on Excel. उसमें lot of students have written that basic and advanced Excel knowledge. उनको VLOOKUP, sort, filter कुछ भी नहीं आता था। तो what I want to tell you is that it should not become a problem. When we are writing certification, it should be your strength, not a weakness, right? तो उसको सोच समझ के करना है और सोच समझ के लिखना है, ठीक है। फिर भी मैं आपको कुछ सर्टिफिकेशन सजेस्ट करूंगा that definitely would be helpful for all of you, ठीक है। ओके, okay, so what about ऑफ कैंपस प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज? ऑफ कैंपस भी इसके साथ में हम लोग कवर कर लेंगे, किस तरह की ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज आती हैं। स्लाइड्स आर crisp, okay. Okay, I had seen a case where a student got 59.9%, but still he does not get qualified for a company with a criteria of 60%. हाँ, वही तो मैंने कहा आपको कि 59.9 राउंड ऑफ नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा 59.9, ठीक है। तो ये नहीं होगा, राइट, कि उसको राउंड ऑफ कर लिया, ओके, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, बट व्हाट टू डू। ऑलराइट, नाउ वी विल कम टू दिस पार्ट दैट इज कैंपस प्रिपरेशंस, ठीक है। कैंपस प्रिपरेशंस पर आ जाते हैं। पहला पॉइंट ये कि रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा आपका, ठीक है। रेज्यूमे किस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होगा मैंने बताया आपको ऑलरेडी, ठीक है। उस बेसिस पे रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। उसके बाद राउंड वन आपका होगा दैट इज वेरियस टेस्ट,
ठीक है। उसके बाद होगा ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद होगा टेक्निकल इंटरव्यू, उसके बाद होगा एचआर इंटरव्यू, उसके बाद होगा फाइनल राउंड। तो आपको इसके लिए रेडी रहना। मेरा पर्सनल मानना ये है कि आप लोग यहाँ से स्टार्ट करो। एमबीए के स्टूडेंट की लाइफ में इंटर्नशिप्स हैं, एग्जाम्स हैं, इंटरनल्स हैं, बहुत सारे कमिटीज होती हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज होती रहती हैं, लेकिन नो वन बेसिकली टॉक्स अबाउट कि उनको अगस्त सितंबर में प्लेसमेंट चाहिए, तो व्हाट शुड बी द राइट वे। सो दिस इज द राइट वे, दैट ये सारे पॉइंट्स को आप टिक मार्क करते जाओ एक एक करके कि एम आई गुड इन ग्रुप डिस्कशन, एम आई गुड इन रिटर्न टेस्ट, एम आई गुड इन असेसमेंट टेस्ट, ऐसे करके आप खुद अपनी एक चेकलिस्ट बनाओ। ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। ठीक है। सो कैंपस प्रिपरेशंस को एक सब्जेक्ट की तरह लो आप। ठीक है। और ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर एक एक करके मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, इसका एक स्नैपशॉट ले लो। इसमें ये आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर होना चाहिए। ये सारे टॉपिक्स। ठीक है। अगर आप मेरे से पूछोगे कि what is that I should prepare, what is that I should do, what is that I should focus on, so my answer to you is this one, as simple as that। ये सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लो, आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओगे कैंपस के लिए। ठीक है। उसके बाद आप बेसिक सा सर्टिफिकेशन कर लो, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कर लो, बेसिक सी इंटर्नशिप कर लो, ऑनलाइन इंटर्नशिप कर लो, वर्क फ्रॉम होम वाली इंटर्नशिप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बट प्लीज बी रेडी विथ दीज टॉपिक्स। ये टॉपिक प्रिपेयर नहीं हुए, बहुत अच्छी इंटर्नशिप कर ली, कोई फायदा नहीं। ठीक है। तो शॉर्ट में बता देता हूँ। एक तो 11th का अकाउंट्स। ठीक है। अच्छा, आज हम लोग एक क्विज भी खेलेंगे लास्ट में, राइट? और उस क्विज में आप लोगों को प्राइज मिलेंगे। ठीक है। और आई विल बी आस्किंग यू फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है। सो अपनी रेडीनेस रखिएगा, लास्ट में अपने अपने वीडियोस ऑन कर लेना, राइट? सो जब हम लोग उस क्विज को खेले, पार्टिसिपेट करें, तो इट वुड बी गुड पार्टिसिपेशन, शुड बी गुड पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटेंसी ऑफ 11th, यस। सो जो लोग नॉन कॉमर्स से हैं वो लोग भी, और जो कॉमर्स से भी हैं वो लोग भी, मैं देखता हूँ कई बार अकाउंटेंसी में वीक हो जाते हैं फॉर सम रीजन। सो ये इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग, बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन, राइट? दीज आर फॉर सम ऑफ द कंपनीज। बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन, लाइक जैसे मैंने डेलोइट के लिए बताया आपको। डेरिवेटिव्स, यस, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर आरसेशियम, राइट? डेरिवेटिव्स। अब आप बोलोगे कि सर ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये एक्सक्यूज हम लोग कंपनी को नहीं दे सकते हैं। अगर कंपनी आपसे पूछेगी कि पुट ऑप्शन क्या है, कॉल ऑप्शन क्या है, और राइटर और बायर क्या है ऑप्शंस के, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये तो हम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, या ये हम फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे। जिन्होंने पढ़ लिया है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो कंपनीज ये नहीं सोचती हैं कुछ भी कि इनके सिलेबस में क्या है, इनके सिलेबस के बाहर क्या है, वो तो सब पूछ लेते हैं। ठीक है। तो अगर आपके सिलेबस में नहीं है सो फार, तब भी आपको प्रिपेयर करना है। प्लीज अंडरस्टैंड, राइट? दैट्स व्हाई आरसीएम इज स्लाइटली डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी आपने नहीं पढ़े। ठीक है। तो डेरिवेटिव इज वन सच टॉपिक। उसके अलावा कैपिटल मार्केट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिक्स्ड इनकम, रेशियो एनालिसिस, बिजनेस वैल्यूएशन। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। और ये जो हम लोग सर्टिफिकेशंस करते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल मॉडलिंग का सर्टिफिकेशन हुआ, कैपिटल मार्केट का सर्टिफिकेशन हुआ, इन सब में भी आप यही चीजें सीखते हो। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप जो भी सर्टिफिकेट कर रहे हो उसको इससे मैच करो, इन टॉपिक्स से। अगर वो सर्टिफिकेशन में आप यही चीजें सीख रहे हो, तो डेफिनेटली वो सर्टिफिकेशन करो आप, अच्छी बात है, राइट? एंड ऑफ द डे अवर पर्पस इज टू लर्न दीज टॉपिक्स। हमारा पर्पस क्या है? ये टॉपिक लर्न हो जाए हमको। अब वो अगर आपको कॉलेज में कोई सिखा रहा है, वहां से हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो सर्टिफिकेशन से हो रहा है तो अच्छी बात है। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो सेल्फ स्टडी कर लो, बट यू नीड टू मेक अ ग्रिप ऑन दीज टॉपिक्स। ठीक है। और आपकी ग्रिप कितनी है अभी, लाइक जैसे मैंने बोला कि वी विल बी हैविंग सम इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो आप क्लैरिटी आ जाएगी। राइट?
इसके अलावा फिर कुछ टेस्ट है, वर्सन टेस्ट है, एक्सेल टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, ग्रुप डिस्कशंस है। ठीक है, सो ये सब भी आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, जीडी, एचआर इंटरव्यूज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये पॉइंट है, इसलिए ये स्लाइड को आप लोग ध्यान रखिएगा कि अल्टीमेटली वी हैव टू मेक अ ग्रिप ऑन ऑल दीज टॉपिक्स। ठीक है, ये बेयर मिनिमम टॉपिक्स है। राइट, किसी क्वेश्चन हो तो प्लीज अनम्यूट करके पूछते जाइए। राइट, डू नॉट वेट फॉर द एंड। अच्छा, एक क्वेश्चन आया कि डिफरेंस क्या होता है टेक्निकल और पर्सनल इंटरव्यू में। टेक्निकल इंटरव्यू जनरली तो देखो, वैसे तो सभी पर्सनल इंटरव्यू है, 1-to-1 इंटरव्यूज ही होते हैं। लेकिन टेक्निकल में राइट ये सब टॉपिक्स पूछते हैं, और पर्सनल इंटरव्यू जो एचआर इंटरव्यू होता है, एचआर इंटरव्यू में आपके थॉट प्रोसेस पूछते हैं। जैसे कि आपने डेलोइट ज्वाइन करने के इंटरव्यू के लिए गए आप, तो व्हाट इज द व्हाई यू वांट टू ज्वाइन डेलोइट, व्हाई यू वांट टू गेट इनटू टैक्सेशन, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एमबीए के टाइम पे आया होगा ना आपको कि लाइक व्हाई यू वांट टू डू एमबीए, विच स्ट्रीम यू वांट टू गेट इनटू एमबीए। वो 4-5 टेस्ट की तैयारी करनी है। पहला है वर्सन टेस्ट। अच्छा, ये जितने भी टेस्ट हैं जनरली एलिमिनेटिंग टेस्ट है। ठीक है, मतलब इन टेस्ट से मैं अगर एलिमिनेट होते हैं तो आगे इंटरव्यू तक नहीं जा पाते हैं। फर्स्ट इज वर्सन टेस्ट। ठीक है, वर्सेंट इज बेसिकली लैंग्वेज टेस्ट जो डेलोइट कंडक्ट कराती है। ठीक है, आप लोग जो यूट्यूब पे एडेड हो ऑलरेडी, यूट्यूब वीडियो, जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया हुआ है, उसमें एक डेलोइट के लिए स्पेसिफिक वीडियो है, आरसीएम की एक स्पेसिफिक वीडियो है, तो वो भी आप देख सकते हो। ऑल्दो आई विल बी डूइंग दो सेशंस आल्सो इन द कमिंग डेज, तो आप लाइव भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, सो वर्सन टेस्ट इज वन, साइकोमेट्रिक टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, और अकाउंटिंग का टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये सब जो टेस्ट होते हैं अलग अलग कंपनीज के अलग अलग टेस्ट होते हैं। बट अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आई शुड टेल यू दैट अगर आप डेलोइट के क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हो, ओके, तो वर्सन टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आई विल रिपीट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इफ यू आर फॉलोइंग इन द eligibility criteria of Deloitte, please start preparation for Watson test as early as possible, because this is a time consuming test. Second point is that if you prepare well for Watson test, there is a very high possibility that you will get selected in that company. ठीक है, सेम गोज फॉर आरसीसीएम ऑल्सो। आरसीसीएम के लिए भी वैसा ही है, लेकिन डेलोइट के लिए बहुत हाई पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो एक शॉर्ट में बता देता हूँ, वर्सन टेस्ट इज बेसिकली एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें राउंड्स होते हैं रीडिंग, रिपीटिंग, आंसरिंग शॉर्ट क्वेश्चन, सेंटेंस बिल्डिंग, स्टोरी रिटेलिंग, एंड वन लास्ट राउंड इज 1 मिनट एक्सटेम्पर सॉर्ट ऑफ। सो 6 राउंड्स होते हैं इसके अंदर। इसका भी एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दैट व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन वर्सन टेस्ट। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर टेस्ट वन हैज टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड ऑफ। इसमें से जो लोग निकलते हैं उन्हीं के बाकी के राउंड्स होते हैं, बीपीटी टेस्ट, फिर उसके बाद एक्सेल टेस्ट, फिर फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, एचआर राउंड, सब उसके बाद स्टार्ट होता है। वर्सन टेस्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। ठीक है, इसमें जजमेंट क्या होता है? इसमें जजमेंट होता है कि आप कितने अच्छे से फॉरेन इंग्लिश जो है उसको समझ पाते हो। दैट इज दी जजमेंट दैट दे वांट टू डू। ठीक है, अब वो क्यों होता है, क्या होता है, वो हम लोग डेलोइट के लिए जब डिस्कशन करेंगे तब उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि ये टेस्ट क्यों कंडक्ट करते हैं वो लोग। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आरसीएम की बात करता हूँ, सो आरसीएम का जो टेस्ट होता है उसमें नॉर्मली 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी तक का यही क्राइटेरिया रहा है, 30 क्वेश्चन 30 मिनट्स। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत ही कम है, तो यस यू राइट, बहुत ही कम है, उनका सिलेक्शन भी बहुत कम है। ठीक है, ये मैं आपको डेटा बता रहा हूँ लास्ट टू लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का भी कुछ इस तरह का ही डेटा था। 600 स्टूडेंट्स अपियर हुए थे, 25 ने क्लियर किया था वो टेस्ट। इस तरह का ही डेटा इस साल का भी, हर साल का ऐसे ही डेटा रहता है। तो जो टेस्ट है, टेस्ट में आप मान लो कि 90 to 95% पीपल गेट एलिमिनेटेड। ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत एम्फोसाइज कर रहा हूँ आपको टेस्ट के लिए, दैट आरसीएम का टेस्ट हो या डेलोइट का टेस्ट हो, दोनों ही इजी नहीं है। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट वेरी वेल। ठीक है, और ये दोनों ही कंपनीज पिछले 5 सालों में हर बार पार्टिसिपेट करी, लॉट ऑफ कैंपस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके कैंपस में, आप लोग लास्ट में जिन जिन स्टूडेंट्स को अपने अपने कॉलेज के कैंपस के बारे में
कुछ कंफ्यूजन हो तो हम लोग उसको थोड़ा सा अलग से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हर कॉलेज का कैंपस अलग अलग होता है, बट जनरली स्पीकिंग। अच्छा, ये कंपनी के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑफ कैंपस भी हायर करती है। वन ऑफ आवर स्टूडेंट, ही कुड नॉट गेट थ्रू इन कैंपस, बाद में उन्होंने ऑफ कैंपस अप्लाई किया था, ऑफ कैंपस उनका निकल गया। ठीक है, वेरी गुड कंपनी। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चंस पूछते हैं? 20 क्वेश्चंस फ्रॉम अकाउंट्स एंड एफएम, एंड 10 क्वेश्चंस फ्रॉम एप्टीट्यूड एंड जीके। ठीक है, ये जनरली इनका होता है। तो 30 क्वेश्चंस होते हैं। सुनने में इजी है कि 30 क्वेश्चंस, लेकिन बहुत टफ आते हैं इसके अंदर, बहुत ही टफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपने भी सुना होगा, आई एम श्योर, कि ये कंपनी थोड़ा सा टफ। तो प्राइमरली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज रिटन टेस्ट, सॉरी असेसमेंट टेस्ट। तो असेसमेंट में वर्सन टेस्ट एंड दीज काइंड ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिटन टेस्ट। ठीक है, तो इनको हमको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक्सेल टेस्ट, एक्सेल भी कुछ कंपनीज प्रैक्टिकली परफॉर्म करवाती हैं। वो आपको बोलेंगे कि लाइक आपको ये बनाकर देना है हमें, या ये टेस्ट हम लोग ऑनलाइन लाइव कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, या कई बार अगर हम लोग डेलॉइट की बात करें तो वो एमसीक्यू बेस्ड एक्सेल का टेस्ट कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बात, ये इसके अंदर है। तो एक्सेल में जो बेसिक्स है वो तो कवर कर लो कम से कम। वी लुकअप, पाइवट, फिल्टर्स, चार्ट्स, राइट, जो बेसिक एक्सेल है, ठीक है, दैट तो यू शुड अंडरस्टैंड। अगर आप बिल्कुल नए हो एक्सेल में, तो मेरा सजेशन ये है कि आना चाहिए आपको एक्सेल, क्योंकि दिस इज अ बेसिक जॉब रिक्वायरमेंट। कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोफाइल में आप जाओगे, एक्सेल इज अ बेसिक। ठीक है, सो जरूर सीखें उसे अगर बिल्कुल नहीं आता है आपको। राइट, सो इसके अलावा जो कई बार पैरा राइटिंग भी बोल देते हैं, कई बार ऐसे राइटिंग बोल देते हैं, कई बार रिपोर्ट राइटिंग बोल देते हैं, और भी कुछ कुछ टेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, एप्टीट्यूड तो होता ही है। मोस्ट ऑफ द कंपनी कवर्स एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जो हम लोगों ने एमबीए एंट्रेंस के टाइम पे पढ़ा था, इंग्लिश, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग, वो यहाँ पर काम आ जाता है। ठीक है, तो उसके भी बेसिक्स रिवाइज कर लीजिए। राइट, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट द कंपनी आर गोइंग टू आस्क। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। ओके, टेस्ट को लेके किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताइए। सर व्हाट इज द बेस्ट फ्री सोर्स फॉर वर्सेंट, क्योंकि इतना इजीली मिलता नहीं है वो, और हाई चार्जेस है। देखो, वर्सेंट के लिए अगेन, वैसे तो अगर आप बेसिक स्टार्ट कर रहे हो तो देर आर सर्टन वीडियोस ऑन यूट्यूब ऑल्सो, तो वहां से भी कर सकते हो। एंड देन देर आर पेड एप्लीकेशंस। ठीक है, तो वो चीज भी रहती है। तो बट अगर अगर बेसिक स्टार्ट करना है तो यस, बेसिक स्टार्ट तो यूट्यूब से किया जा सकता है। ठीक है, ओके ओके ग्रेट। और क्या क्वेश्चन है? मेनी ऑफ आवर सीनियर्स फ्रॉम फाइनेंस बैच आर स्टिल अनप्लेस्ड। From your industry experience, do you see any specific challenge or shift in the finance job market that might be affecting placements? Okay, very good question. ये तो हर साल की कहानी है, राइट। मार्च आ जाता है और स्टूडेंट्स प्लेस नहीं होते हैं, और कॉलेज उनका खत्म हो जाता है इन द मंथ ऑफ मई। राइट, मई में वो कॉलेज से बाहर आ जाते हैं, और तब तक प्लेस नहीं होते हैं। फिर एंड में जो जॉब मिलते हैं वो जॉब ले लेते हैं, और जिनको वो भी नहीं चाहिए होते हैं या वो भी नहीं मिलते हैं, फिर वो सेल्स की जॉब में आ जाते हैं, या फिर वो ऑफ कैंपस सर्च करते हैं। तो रीजन उसका बहुत सिंपल है। रीजन उसका ये है कि देखो, एमबीए को एक बार आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि जो एमबीए का जो पूरा प्रोसेस है, इसलिए मैंने बोला था आपको कि जो ये वाली स्लाइड है ये मैं बाद में लेता हूँ। दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन। दिस वन, राइट। सो बेसिकली देर इज नो टाइम लेफ्ट। यस, दैट्स व्हाई आई मेड दिस स्लाइड कि काफी बार अगस्त सितंबर में स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर अब क्या करें। तो जो करना है वो अभी करना था। अगस्त सितंबर में आप बोलोगे तो फिर कोई सेंस नहीं बनेगा। तो अप्रैल टू जुलाई 25, ये जो 4 महीने आपके पास हैं, उसमें इंटर्नशिप भी करना है, एग्जाम्स भी देना है, इंटरनल्स भी देना है, और सर्टिफिकेशंस भी करना है, प्लस कैंपस की तैयारी करना है। तो ये पांचों चीजों का टाइम मैनेजमेंट जो है, ये जो कर लेते हैं उनके लिए बड़ा इजी हो जाता है। तो किस में कितना टाइम आपको देना है, ये अब आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिए। सबके साथ यही प्रॉब्लम है, जितने भी एमबीए के स्टूडेंट्स हैं, एवरीवन इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम कि ये 4 महीने में सब कुछ करना है और अगस्त में प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, सो इट्स बेसिकली टाइम मैनेजमेंट। इसलिए किन चीजों को प्रायोरिटी देनी है, प्रायोरिटाइज दीज थिंग्स। ठीक है,
मैं अपनी प्रायोरिटी आपको जरूर बता दूंगा, जो हम लोग नॉर्मली सजेस्ट करते हैं। उस प्रायोरिटीज को मैं डेफिनेटली बता दूंगा। ठीक है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डेलॉइट? डेलॉइट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डेलॉइट यूएसआई टैक्सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि डेलॉइट अलग प्रोफाइल्स के लिए भी आती है। तो एक्सेप्शनल टाइम्स में उन्होंने इंजीनियर्स को भी हायर किया है फॉर रिस्क असेसमेंट रोल। बट अगर जो नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ डेलॉइट यूएसआई की, जो जनरली हर साल आ रही है, कोविड के टाइम भी आई थी, कोविड के पहले भी आई थी, और रेगुलर पार्टिसिपेट कर रही है, दैट इज डेलॉइट यूएसआई टैक्सेशन। और वो कॉमर्स या बीबीए और बीकॉम, राइट? सो इन को ही शॉर्टलिस्ट करती है। एक बार उन्होंने परसेंटेज का भी क्राइटेरिया लगाया था, दैट वाज 60%, राइट? सो दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डेलॉइट। In which month Deloitte generally comes for hiring? It normally comes in the month of August or September. ठीक है, वेरी हाई पॉसिबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, एक बार एक्सेप्शनली दे कम फॉर इन जुलाई ऑल्सो। ठीक है, बट मुश्किल है जुलाई में आना, क्योंकि कई लोगों की इंटर्नशिप नहीं होती तब तक। ऑल राइट, सो देखो, एक बात मैं आप लोगों को फिर बोलूंगा कि आज का जो सेशन है वो एक स्टार्टर सेशन है। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, आप खुद समझते हो कि इट्स नॉट अ स्मॉल टॉपिक। बहुत सारी बातें होती है एमबीए फाइनेंस स्टूडेंट्स के लाइफ में, और वो सब के अलग अलग ग्रेजुएशन स्ट्रीम में सबका इंटरेस्ट एरिया अलग है, सबके थॉट प्रोसेस अलग है, सबके स्किल सेट अलग अलग है। सबको कवर करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए फिर भी लाइक व्हाट आई ट्राइड इज कवरिंग द थिंग्स in short right now. But do join our WhatsApp group। आप लोग WhatsApp ग्रुप पे ज्वाइन हो ऑलरेडी, काफी लोग। उसमें आई विल बी सेंडिंग यू सर्टन स्टफ, और आई विल बी शेयरिंग माय नंबर ऑल्सो। सो कहीं भी अगर आप स्टक होते हो तो डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली गाइड यू ऑन दैट। ठीक है, सो ये बातें हमने कर ली है, एक्सेल टेस्ट एंड ऑल दैट। ठीक है, जीडीज की बात, जीडीज के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जानते ही हो जीडीज कैसे होते हैं, क्या होते हैं। बट इसका एक स्नैपशॉट ले लो, इस टाइप के टॉपिक्स आते हैं, नॉट टू डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू स्टडी इन एमबीए। एमबीए एंट्रेंस के टाइम पे जैसा आप जीडी फेस करते हो, उस तरह के जीडी आपका कॉलेज में हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए कोई बहुत अलग स्किल सेट की जरूरत नहीं है। द ओनली पॉइंट इज दैट दोज हु हैव नॉट गिवन एंट्रेंस और दोज हु हैव नॉट फेस्ड एनी ग्रुप डिस्कशंस, जिन्होंने एमबीए के एंट्रेंस के टाइम पे जीडी फेस नहीं करे, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज। ठीक है, दूसरी बात ये कि 50% ऑफ द कंपनीज विल डू ग्रुप डिस्कशंस। 50% कंपनी करेगी, तो घबराने की बात नहीं है आप। 50% कंपनीज नहीं करती है, जैसे कि डेलोइट नहीं करती है, आरसीएम नहीं करती है, तो अच्छी बात है आप लोगों के लिए, राइट? सो ये बात आसान हो गई आपके लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा मत मान के चलिए कि हम लोग जीडी फेस नहीं करेंगे, 50% पॉसिबिलिटीज चल रही है। ठीक है, ऑल राइट, सो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। ठीक है, क्विज में क्विज करें? यस, डू यू वांट मी टू आस्क यू क्वेश्चंस? वैसे अभी आपका फर्स्ट ईयर है, राइट? तो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने अभी ज्यादा सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं। ठीक है, so should I ask you question or should I avoid this? नॉर्मली मैं बाद में करता हूँ, वैसे मई जून जुलाई तक करता हूँ, तब तक सब लोग सब पढ़ लेते हैं, राइट? बट स्टिल ओके, बट यू आर सेइंग कि करो, ठीक है, अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। अब मैं सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों को। ठीक है, अभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़े। ठीक है, जो आंसर देना चाहते हैं, ठीक है। बट मेरा तो सभी को ये सजेशन है कि वीडियोस अगर आप ऑन कर पाओ तो बहुत बढ़िया है। ओके, बट स्टिल जो भी आंसर देना चाहते हैं तो अपना माइक अनम्यूट करके दीजिएगा। ठीक है, सो जो भी आंसर देंगे दे विल गेट प्राइजेस। ठीक है, वीडियो ऑन कर लो तो बेस्ट है, और अदरवाइज यू कैन सिंपली अनम्यूट योर माइक, यू शुड टेल योर नेम एंड देन गिव योर आंसर। ठीक है, ऑल राइट। ओके, सो फॉर कंप्यूटिंग डेट इक्विटी रेशियो विल यू इंक्लूड प्रेफरेंस शेयर्स? ठीक है, Yes. बोलिए यस, हु वुड लाइक टू आंसर? एनीवन? डेट इक्विटी रेशियो के लिए इतनी देर में तो चैट जीपीटी और गूगल
राइट, ये आंसर ही दे देते हैं, ठीक है, तो फिर मजा नहीं आएगा। ओके, यू शुड नो सर दिस पर्टिकुलर वन। मृदुल तिवारी, हाँ सर मृदुल। मृदुल तिवारी फ्रॉम IMS TVB। हाँ हाँ मृदुल बताइए। यस सर, प्रेफरेंस शेयर इंक्लूड किया जाता है टू कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। ओके, चैट जीपीटी तो यूज नहीं करा आपने? सर सभी दे रहे थे आंसर अगर चैट जीपीटी इतनी देर में तो। हाँ ये बात भी सही है। ओके ग्रेट, सो गुड जॉब, वेरी गुड आंसर, राइट मृदुल, यू आर राइट, दैट थैंक यू। प्रेफरेंस शेयर्स इज इंक्लूडेड, राइट, जब हम लोग डेट इक्विटी निकालते हैं तो। ओके गुड जॉब, ठीक है। अह, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। बैंक्स और एनबीएफसी, राइट, इनमें सबसे बड़ा एक डिफरेंस होता है, वो क्या होता है? सर एनबीएफसी सुना होगा। सर 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 एनबीएफसी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एनबीएफसी डू नॉट accept public deposit, very good answer, yes Ujjwal, well done, okay, all right, so अच्छा है, आप लोग को तो पता है, राइट, काफी आंसर्स आप लोग दे पा रहे हो, दैट्स ग्रेट। ऑल राइट, और चलते हैं। डेटर रेशियोज पढ़े आप लोगों ने, ठीक है, सो डेटर टर्नओवर रेशियो ऑफ कंपनी ए इज 3 सर एंड बी कंपनी इज बी 4। बेटर। अपना नाम बताएं पहले। सर सूरज जैना। ओके सूरज बोलिए। सर कंपनी बी इज बेटर। व्हाई? Sir, because it is able to take the debt fund from status more times than company A. It shows that it has a good potential also. ओके बाकी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज, एवरीवन म्यूट योर माइक प्लीज। Okay, okay. So, what is the reason that you're giving, Suraj? Sir, because it shows that sir company B is able to take money from status more quickly than company A. Okay, okay, okay. It is able to realize its debtor faster, right? Yes, sir. Okay. ठीक है, थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेनेशन और अच्छा देना है, बट गुड ट्राई। ऑल राइट, वेल डन। ये क्वेश्चन भी है। व्हाट इज द फॉर्मूला यूज फॉर कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी? Sir, कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा है काफी लोगों ने अभी। the Gordon's कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकाली जाती है? कैपिटल So may I, स्ट्रक्चर, हाँ बोलिए। yeah, so it is cost of equity plus premium risk into beta. Sorry, RF plus RM minus RF into beta. Very good answer, right? Using CAPM model, right? One of the fantastic model is CAPM model. Okay, so that is what you have to remember. Okay, well done, Jatin. That is RF plus RM minus RF into beta. Okay, great. Okay, buying a machinery is operating, financing, or investing activity. सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर सर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग, कितने सारे लोगों ने आंसर दे दिया, अब किस किस को प्राइस जाएगा? ओके, बहुत सारे लोगों ने दे दिया, ठीक है। अपना नाम लें पहले, उसके बाद बोले तो ज्यादा अच्छा है। ओके, यस यूर एवरीवन इज राइट, बाइंग मशीनरी इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, सो ध्यान रखिएगा ये भी। ओके, ये थोड़ा टेक्निकल ज्यादा है। ओके, नाम बता के आंसर दीजिएगा। बैलेंस ऑफ प्रीपेड लाइबिलिटी अकाउंट, इज इट अ डेबिट और क्रेडिट sir साइड? credit. Sir Suraj Jaina credit. सूरज क्रेडिट, ओके। Prepaid liability account, which balance is that? That's on a credit side. Okay, great. ठीक है, टैक्स के एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं। हाउ मच इज कॉर्पोरेट टैक्स इन इंडिया? इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स कितना है? 30%। 30%, 25%. 25%, ओके। और मृदुल तिवारी सर 30%। 30, अभी चेंज होके 25 हुआ है सर, 2021 में चेंज हुआ था। 25 है या 30% है?
सर 30% था, लेकिन 2021 में चेंज करके 25 कर दिया। 25 कर दिया अभी, ठीक है। और ओके, सो ये भी ध्यान रखना है आपको, अभी दोनों ही हैं, ठीक है। कुछ कंपनीज के लिए 25 है, कुछ के लिए 30 है, ठीक है, और कुछ कंपनीज के लिए और भी कम है। ओके, तो सारे ही टैक्सेशन है अभी, अलग अलग स्लैब्स हैं इसमें भी। ओके, सो टैक्स भी ध्यान रखना है आपको, डेलोइट के लिए बहुत क्वेश्चंस हैं टैक्स के। फाइनेंस में देखो, अभी आप लोगों ने डेरिवेटिव वैल्यूएशन सबने अपने अपने लेवल पे जरूर पढ़ा है, लेकिन अभी शायद फॉर्मल क्लासेस नहीं हुई होंगी आपकी, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा आपसे अभी फाइनेंस के क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा हूँ, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसा मैंने आपको बोला है कि अभी आज मार्च एंड होने वाला है, तो दिस जस्ट अ स्टार्ट, सो दैट आई कैन हाईलाइट यू सर्टेन थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर, कि लाइक कॉलेज में आपको अगर वो टॉपिक्स पढ़ाएं तो आप उस पर स्पेशल फोकस करिए, क्योंकि यही आगे आपको काम में आने वाले हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जितने मैंने आपको बताया उनको बहुत ध्यान से पढ़ो, केवल इसलिए नहीं क्योंकि आपको एग्जाम पास करनी है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट जरूर एग्जाम पास करने के हिसाब से सोच सकते हो, लेकिन ये बहुत बेटर वे में पढ़ना है आपको, ठीक है। ओके ग्रेट, सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस। बाकी भी मैं आप लोग मेरे ख्याल से सभी एडेड हो व्हाट्सएप ग्रुप पर, ऐसा कोई है जो अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं है? आई एम सेंडिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस लिस्ट ओवर देयर, सम मटेरियल, राइट। कुछ कुछ वीडियोस भी आपको उसमें सेंड करेंगे, ठीक है। सो यू विल गेट अ गुड आइडिया अबाउट लाइक व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है। टेक्निकल क्वेश्चंस में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, ठीक है। अभी मैं इतने क्वेश्चंस ले रहा हूँ फिलहाल। यस, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू में या फिर असेसमेंट टेस्ट में, तो ये टॉपिक्स जो है इनको आपको बहुत प्रॉपर में पढ़ना है, ठीक है। Okay, now what we do? Okay, as far as these preparations are concerned, तो देखो हमारे तीन तरह के कोर्स चलते हैं। पहला कोर्स है हमारा स्किल सर्टिफिकेशन। स्किल में बेसिकली एक्सेल एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये दो जो टॉपिक्स हैं, ये व्हाट वी बिलीव इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, और ये कैंपस में कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। डायरेक्टली तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि कोई भी सर्टिफिकेशन बहुत डायरेक्टली आपको शायद ही हेल्प करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली, क्योंकि ये जो टॉपिक्स आप पढ़ते हो इसका कहीं ना कहीं इस तरह से यूज आ सकता है, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। सेकंड, वी प्रोवाइड इंटर्नशिप। इन दैट इंटर्नशिप वी प्रोवाइड फुल फ्लेज्ड कैंपस प्रिपरेशन क्लासेस, प्लस वी प्रोवाइड लाइव प्रोजेक्ट ऑल्सो, राइट। तो कई लोग बोलते हैं कि सर हम इंटर्नशिप हमको मिल नहीं रही है, या हमको अच्छी इंटर्नशिप नहीं मिल रही, या सेल्स की इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, और वो 45 डेज कहीं ना कहीं पूरा वेस्ट करके आ जाते हैं, कुछ काम सीखते भी नहीं है और कुछ उनको मिलता नहीं है उसमें खास। सो इससे बेटर ये कि व्हाट वी सजेस्ट इज दैट दे कैन डू ट्रेनिंग ऑफ कैंपस, कैंपस की पूरी ट्रेनिंग कर लो, प्लस लाइव प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाओ, सो दैट वुड बी मोर यूजफुल and more fruitful use of those 45 days, right? So that is what goes on. And third, which is the most important thing that we all suggest, is placement preparation courses, right? So placement preparation is basically a comprehensive preparation that we provide, which includes career guidance, technical interviews, HR interviews, GDs, assessment test, company specific preparation, placement assistance. So केवल और केवल कैंपस नहीं, राइट, हम लोग ऑफ कैंपस भी आपको सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट ही नहीं करते, लाइक वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर इनटू प्लेसमेंट फॉर लास्ट 6-7 years, more than 3,000 students are placed all across country, right? So we do take help from them, we try to place you in those companies. So references जो है, जॉब रेफरेंसेस, वो भी हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ट्राई यही करते हैं कि कैंपस में इफ यू कैन गेट प्लेस्ड, अगर कैंपस में नहीं होता है तो वी हेल्प यू इन प्लेसमेंट, राइट। सो दैट इज व्हाट वी डू। सो बेसिकली इट्स अ 35 days, ब्रॉडली स्पीकिंग करीब 30-35 days का प्रोग्राम होता है, प्लस रेगुलर असिस्टेंस टिल यू गेट प्लेस, इंटरव्यूज, जीडीज, टेस्ट एंड ऑल करियर रिलेटेड क्वेरीज, राइट। इसका जो पूरा डिटेल है, राइट, ऑल दिस डिटेल यू कैन फाइंड आउट ऑन आवर वेबसाइट, राइट। सो वेबसाइट एक बार आप लोग विजिट जरूर कर लीजिएगा, ऑल्दो इसमें कंपनी स्पेसिफिक डिटेल्स अभी अपलोडेड नहीं है, बट ब्रॉडली यू विल फाइंड ऑल दीज डिटेल्स हियर, ठीक है। सो इसकी मैं लिंक आप लोगों को भेज दूंगा ग्रुप में। You will find so about what this program is all about, okay, what we are going to cover, right? So
all this coverage is there. Details है इसमें 35 days के, right? What all we will cover in these 35 days. What is day 1, day 2, day 3, like that, right? Everything is given here. Okay, so ये पूरा कोर्स का डिटेल है. इसके अलावा जो एडिशनल पॉइंट्स है, स्टडी मटेरियल, रिफ्रेशर सेशंस, कंपनी स्पेसिफिक टेस्ट, राइट, वीडियो रिकॉर्डिंग्स. ओके, सो जो भी क्लास होती है उनकी रिकॉर्डिंग्स होती है, उसका बैकअप आपको मिल जाता है. ओके, सो दीज थिंग्स आर देयर. कुछ वीडियोस हैं, राइट, आप लोग ये वीडियोस भी जरूर देखें. जैसे कि लाइक हाउ एन इंजीनियर सिक्योर्ड 3 कोर फाइनेंस जॉब. ये भी एक अच्छा, लाइक वन ऑफ आवर स्टूडेंट ही हैज टॉक्ड अबाउट दिस वन. ये भी एक अच्छा इंटरव्यू हुआ था जिसमें लाइक, सो वी डू टॉक टू आवर स्टूडेंट्स जो जिनके अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं. तो ये इनसे आपको और अच्छा नॉलेज मिलेगा. ठीक है, so do visit this particular website. Also join our WhatsApp group. You will get continuous updates on those ones. Right, so these are some of the things. Last point is about self clarity. देखो, self clarity में आप लोगों को यही मैं बोलूंगा कि give priorities, right? Priority दो आप लोग, because you have limited time available. First priority, I believe you should give to campus preparations. Second priority to internship from companies. ठीक है, जो internship आपको करनी है उसको second priority. Third, live projects. ठीक है, because we have to display something. ठीक है, तो live projects, अगर आपको कॉलेज में भी कोई live project में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हो आप. जरूरी नहीं कि कहीं पे आप पे करके ही लाइव प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो, राइट? कॉलेज के लाइव प्रोजेक्ट वो मेंशन कर सकते हो रेज्यूमे में, क्योंकि रेज्यूमे में कुछ लिखना अच्छा होता है, एकदम खाली रेज्यूमे में भी अच्छा नहीं लगेगा. Fourth is internship from institutions, and fifth is certification, right? So this is my sequential importance to uh, the time that you have, you can prioritize according to these ones, right? So जैसा जैसा इसमें लिखा है आप सोच सकते हो उस तरह से सीक्वेंशियली अपना टाइम देने के लिए. सर्टिफिकेट्स को बहुत ज्यादा ये ना करें कि हम लोग नंबर ऑफ सर्टिफिकेट पर जाएं, क्वालिटी ऑफ सर्टिफिकेट पे जाओ. एक सर्टिफिकेट लो लेकिन बहुत थॉरोली उसको प्रिपेयर करो. इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स करिए. ठीक है, इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स में जैसे मैंने आपको बोला, फाइनेंशियल मॉडलिंग इज इंपॉर्टेंट, MS एक्सेल इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, NISM के सर्टिफिकेट्स अगर आप करते हो वो भी अच्छे होते हैं सर्टिफिकेट्स. इसके अलावा इक्विटी रिसर्च से रिलेटेड कुछ कर रहे हो वो भी एक अच्छे सर्टिफिकेट्स होते हैं. तो ये जो पूरा एरिया है, स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट, वैल्यूएशंस, दिस इज अ गुड एरिया. इससे रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट्स आप कर सकते हो तो दे आर गोइंग टू हेल्प यू. बट केवल एक क्वांटिटी बढ़ाने के लिए सर्टिफिकेट्स मत लीजिए. एक्सपेक्टेशंस, राइट, समझते जाइए अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस क्या है पैरेलली. लाइक, आर वी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स मनी, आर वी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स सिटी. सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम लोग ये पर्टिकुलर टाउन नहीं छोड़ सकते हैं, हमको इसी टाउन में रहना है. तो वो एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया हो जाता है. ठीक है, ये चीज हम जनरली इग्नोर कर देते हैं. आई नो सम ऑफ पीपल हु से दैट नो, वी वांट अ जॉब अराउंड अवर होम टाउन. अब अगर आप अराउंड योर होम टाउन जॉब सर्च कर रहे हो, बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी फिर आपको. तो उसके लिए एक अलग थॉट प्रोसेस रखना है. ठीक है, तो इसलिए अपनी एक्सपेक्टेशंस अभी से इन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखें. सिटी, प्रोफाइल, ब्रांड, मनी एंड वर्क लाइफ बैलेंस. ठीक है, इन सब बातों को थोड़ा थोड़ा सोचना स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है, सीइंग टू फार इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. कई बार लोग इतनी लंबी प्लानिंग करते हैं कि हम लोग जॉब करेंगे, फिर बिजनेस करेंगे, फिर बिजनेस करेंगे, फिर कुछ ये करेंगे. इतना सारा सोचोगे तो कुछ भी नहीं होगा. यू विल गेट स्टक. ठीक है, टेक वन स्टेप, then take next step, right? It's just like walking in a fog, right? आपको you can see only 10 meters, 10 मीटर से ज्यादा नहीं दिखेगा आपको. इसलिए जो सामने है उसको देखो. I mean too much of planning will lead you nowhere, right? तो अभी जो सामने चीजें हैं उनको ऑप्ट करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, some career related questions I already covered few of them, right? But still, if you have any question, you can certainly get in touch. If I have to summarize the entire session, utilize the time very wisely. Very less time is available, right? Focus on campus preparations. Campus की तैयारी अभी से start कर दीजिए. And it's not like that you should join the institute और उसके बाद ही आप तैयारी चालू. ऐसा कुछ नहीं है.
आज आप खुद से भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, हम लोगों का जो स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो तो एक है ही आपके पास ऑप्शन, लेकिन अगर आज आप वर्सन टेस्ट की तैयारी करना चाहते हो तो वर्सन टेस्ट सेल्फ भी स्टार्ट कर सकते हो। आप डेरिवेटिव्स प्रिपेयर करना चाहते हो तो थोड़ा सेल्फ डेरिवेटिव देखना स्टार्ट कर दो। तो इट इज लाइक कि आप खुद से भी थोड़ा थोड़ा एफर्ट लो। जैसे इन्होंने बोला कि हम जीडीज की तैयारी करते हैं, तो डू ग्रुप डिस्कशंस प्रिपरेशन, जो भी आप अपने एंड पे कर सकते हैं, राइट, स्टार्ट डूइंग दैट। राइट, डेरिवेटिव ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जनरली थर्ड सेमेस्टर में आते हैं, लेकिन पहले ही आप लोगों को ये पढ़ लेना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपको कैंपस में पूछे जाते हैं। ठीक है, फॉर सम ऑफ द लार्ज कंपनीज। ठीक है, और वैल्यूएशन फाइनेंशियल मॉडलिंग, जैसे ये भी एक अच्छा स्किल सेट है जो आप लोग डेवलप करिए, और कहीं ना कहीं आपको इसमें भी हेल्प मिलेगी। ओके, राइट, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई एम जस्ट 10 मिनट्स लेट। राइट, 10 मिनट ही हम लोगों ने ओवर करा है। राइट, सो वी हैव टाइम। राइट, जिनके भी कोई क्वेश्चंस हो तो the सेशन फोरम इज ओपन फॉर एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। राइट, उसके बाद हम लोग आपसे इजाजत लेंगे। राइट, सो वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव, जस्ट प्लीज डू आस्क। What are the ways to increase fluency in English? I know how to communicate, but could not speak fluently. Okay. देखो, English fluency is all about practice. Okay. So that's the only way actually. That's the only way. There are, but these days, yes, some of the applications are also there. You can use those applications. They help you to enhance your fluency. But of course, it is all about practice speaking. सेकंड पॉइंट, एक और बात जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वो आप लोग के लिए बहुत रेलेवेंट है। दैट इज हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट फॉर MBA फाइनेंस स्टूडेंट टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश। डेफिनेटली इट्स इम्पोर्टेंट, बट नॉट एज इम्पोर्टेंट एज MBA मार्केटिंग स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है। इफ यू आर MBA फाइनेंस स्टूडेंट, तो आपकी टेक्निकल एक्यूरेसी मैटर्स द मोस्ट देन योर कम्युनिकेशन एंड फ्लुएंसी। ठीक है, बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं करना है। और जैसे डेलोइट जैसी कंपनी जिसके डीलिंग ही आपकी US ऑफिस से होती है, तो दे लुक फॉर इंग्लिश फ्लुएंसी। वो उन्हीं को लेते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी है। ठीक है, सो दिस इज ऑल लाइक व्हाट वी कवर इन अवर सेशंस। वी कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। ठीक है, जो हम लोग 35 डेज के प्रैक्टिस कराते हैं, इट कवर्स ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड। So that includes speaking practice also. And the training does not end in 35 days. It's a basic 35 days. Then continuously every Sunday, every holiday, we have our practice sessions goes on. Right? So those who did our sessions last year, they are still coming if they are not placed. वो अभी भी आ जाते हैं कई बार, उनको कुछ प्रैक्टिस करनी होती है। अभी रिसेंटली लाइक S&P Global has participated. Right, so they came and then they attended our session for 2 more days. So it is like a core 35 days of preparation plus regular assistance till you get placed. Okay. Okay, how do you see the role of AI and automation impacting finance job? देखो, ऑफ कोर्स AI और ऑटोमेशन से इम्पैक्ट तो आ रहा है, लेकिन अभी ये इनिशियल स्टेजेस में है। ओके, तो इनिशियल स्टेज में ऐसा है कि लाइक इट्स स्टिल अ मिक्स। यहाँ पे ह्यूमन की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अभी भी आप देखते हो चैट जीपीटी के बहुत सारे आंसर्स गलत आते हैं। ठीक है, तो अभी भी इतना रिफाइनमेंट नहीं आया उसमें कि लाइक एवरी आंसर इज कमिंग एक्यूरेट। एक बार वो आने लग जाएगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। लेकिन अभी वो स्टेज आई है कि अभी भी ये AI के आंसर्स उतने सही नहीं आ रहे हैं, तो लोग उसको रिलाय नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से। ह्यूमन इंटरवेंशन इज स्टिल देयर। कई लोग बोलते हैं कि सर हम कौन से टूल्स प्रिपेयर करें, जैसे पावर BI होता है, पाइथन होता है, R होता है, तो ये सब को भी करेगा। अच्छे टूल्स हैं, कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अभी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, दैट रिक्वायरमेंट इज ऑफ एक्सेल। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे इतने स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्लेस्ड हैं। अभी रिसेंटली आई आस्क्ड देम कि आप में से कितने लोग हैं जिनको पाइथन आती है? किसी को भी नहीं आती। 3 साल हो गए उनको जॉब में, किसी को भी नहीं आती। इसका मतलब ये है कि उनके जॉब में पाइथन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लेकिन सबको एक्सेल आता है। तो ये बात समझो आप लोग, जॉब में जो रिक्वायर्ड है ना उसको करो। तो एक्सेल इज इम्पोर्टेंट राइट नाउ।
बाकी जो टूल्स एंड ऑल ये सब चीजें हैं, ये आप कंपनी ज्वाइन करने के बाद भी सीख सकते हो। और अभी इतना रिस्क नहीं है, अभी स्टिल जॉब्स आर देयर, राइट? इट्स स्टिल एआई हैज नॉट टेकन ओवर फुल्ली, अभी भी थोड़ा टाइम है। Okay, so do you provide online training sessions? Yes, we have both online as well as offline, right? दोनों ही sessions रहते हैं, ठीक है? और I'll communicate to you when we are going to start our sessions. I believe that probable dates would be somewhere in the month of April. अप्रैल में हम लोगों की एक बैच डेफिनेटली स्टार्ट होगी, बट उसकी डेट्स अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। वंस दैट गेट्स फाइनलाइज विल सर्टेनली इन्फॉर्म यू। आपने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करा था, राइट, एट कैंप्रेप? यस, आई हैव स्पोकन विद फ्यू ऑफ यू जिन्होंने अप्लाई किया था। आई डिड स्पीक ऑन सम ऑफ द टॉपिक्स। मे बी यू आर इन द प्रोसेस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग, और या फिर आप लोगों को कॉल आ गया होगा, राइट? दोनों चीजें हो सकती है, ठीक है? सो आई विल चेक द स्टेटस एंड लेट यू। ओके, ग्रेट। एनी अदर क्वेश्चन? यस, एनीवन? All right, fantastic. So great. Thank you everyone for your active participation. Those who have got prizes for today's session is Mridul, Ujjwal, Suraj, and Jatin, right, for your answers. So our team, hope you are already added on the group. Our team will individually inform you that how you can get your prizes, right? So that is what for today. Thank you Thank you very so much, much. everyone. Sorry, someone has asked anything? Thank you so much, sir, for Thank guiding us. you. Thank Thank you. you, Thank sir. you. Thank you, sir. Thank you, everyone. All the best.